Hello everyone, this is the third lecture of electrochemistry and we will start this lecture with some properties of electricity and one of them is resistance. So resistance is the obstacle in the flow of electric current, means the property of a medium due to which it resists the flow of current is known as resistance. It means higher the resistance, lower is the tendency of that medium to flow the current. So now the next is conductance. So conductance is reciprocal of resistance, means the ease by which a medium can flow electric current. So higher the tendency to flow electric current, higher the conductance of that substance. तो यहाँ पे conductance क्या होता है, resistance का reciprocal होता है. The next property is resistivity. We can understand resistivity with resistance. So as you know, जो resistance होता है, resistance is directly proportional to the L. L is length of a conductor. Length of conductor. तो कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है. और ये क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट को उतना ज़्यादा पाथ फॉलो करना पड़ेगा और उसको जितना ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए ऑब्स्टिकल उतने ज़्यादा आएंगे, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा. द सेकंड थिंग इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स सपोज ये एक कंडक्टर है और इसमें यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो दिस एरिया विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये ऑब्वियस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा करंट को उतना ज़्यादा पाथ मिलेगा, उतना फ्रीली करंट मूव कर सकता है, तो उसकी करंट को फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ऑब्स्टेकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो जितना वाइड एरिया होगा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, करंट उतना इजीली मूव कर सकता है और रेजिस्टेंस उतना कम होगा. तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सो यू विल गेट दैट R is directly proportional to L by A, or you can say R equal to rho into L by A. So where rho is a constant known as resistivity. तो rho एक constant है जिसको हम कहते हैं resistivity. So rho is basically constant for a मीडियम, मीन्स किसी भी सब्सटेंस के लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर. तो इसका आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल वाइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी फॉर अ कंडक्टर इज कांस्टेंट. सो यू कैन से फ्रॉम हियर रो is equal to R into A by L. So resistivity can be defined as resistance offered by a conductor having unit cross sectional area and unit length. If you will put the value of A equal to 1 and L equal to 1, means unit area of cross section and unit length, the value of rho will become R. So you can say resistivity of a conductor is resistance offered by the conductor having unit cross sectional area and unit length. The next topic is conductivity. So conductivity is reciprocal of resistivity. So it is denoted by a Greek letter called kappa. It is not K, it is kappa. So kappa is equal to 1 by rho. So remember it, kappa is equal to 1 by rho. It is conductivity. So unit of resistance is ohm, which is denoted by this symbol. Similarly, the unit of conductance, it is reciprocal of resistance, so it is also denoted by ohm inverse or Simon. It is generally denoted by S. So it can also be denoted by Simon, simply S. So Simon is reciprocal of ohm or unit of resistivity. So let's see what is the unit of resistivity. You can see that resistivity is equal to R into A by L. So R is ohm, the unit of R is ohm, the unit of area is meter square divided by the unit of length is meter. So you can say the unit is ohm meter. So what will be the unit of resistivity? Ohm meter.
or ohm meter. This is how the unit of resistivity is written. So the next thing is conductivity. So the conductivity, unit of conductivity is reciprocal of the unit of resistivity. So that will be ohm inverse meter inverse. Per ohm per meter, and ohm inverse per ohm. Per ohm is also called Simon. So it is also written as Simon per meter. So remember the unit of all these four quantities. Next topic is factors affecting the conductivity of metals, and then we will do the factors affecting the conductivity of electrolytic solutions. So what are the factors which affect the conductivity of metals? So the first factor, that is nature of metal. So it also depends on the nature of metals, because there are some metals which have the high tendency to conduct electricity. For example copper, एल्यूमिनियम. कॉपर और एल्यूमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. हाउएवर जो बाकी के मेटल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट उनकी कंडक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और कॉपर. सो दिस इज़ द नेचर ऑफ मेटल, मीन्स कितना इजीली कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी. एज यू नो, charge carriers in case of solids are electrons. The electrons are responsible for the conduction of electricity. So therefore the charge carrier are electrons. तो electrons की ही वजह से charge flow होता है, electrons की वजह से current flow होता है. तो इस वजह से जितने ज़्यादा free electrons होंगे वो इतना easily electricity conduct करता है. For example gold, silver, तो उनके free electrons easily इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. कुछ मेटल्स की कंडक्टिविटी कम होगी. सो फर्स्ट थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स. देन द सेकंड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द कंडक्टिविटी is decreased. So conductivity is inversely proportional to the temperature, or you can say resistivity is directly proportional to the temperature in case of metals. तो metals के केस में जो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और मेटल आयंस के बीच में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयंस, और कंडक्टिविटी कम हो जाती है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है मेटल्स की. द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ electrolytic solution. So in previous topic we have discussed the factors affecting conductivity of metals. So in case of metals the charge carriers are electrons, while in case of electrolytic solutions the charge carriers are ions, positive and negative ions. तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. सो द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द कंडक्टिविटी डिपेंड्स इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो एज यू नो देयर मे बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. सो अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसमें ज़्यादा आयंस फॉर्म करेगा, और अगर ज़्यादा आयंस फॉर्म करेगा तो कंडक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा आयंस मूव कर सकते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में. तो जितने ज़्यादा आयंस मूव करेंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो कंडक्टिविटी कम होगी. सो द फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द सेकेंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सो ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट हाउ डज इट डिपेंड? तो आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ में नहीं होते हैं. द नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. तो जितना ज़्यादा विस्कस होगा कोई भी सॉल्वेंट, आयंस के लिए मूव करना उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा उस विस्कस सॉल्वेंट के थ्रू.
इसका मतलब सॉल्वेंट की विस्कोसिटी जितनी कम होगी, आयंस के लिए मूव करना उतना इजी होगा, और आयंस के लिए मूव करना जितना इजी होगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना इजीली फ्लो होगी। और कंडक्टिविटी इसी को कहते हैं, दैट इज़ द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट मीन्स विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। सो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। द नेक्स्ट थिंग इज साइज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, द साइज ऑफ आयंस ऑल्सो अफेक्ट द कंडक्टिविटी, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा आयंस का होगा उसको फ्लो होने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो साइज, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा होगा आयंस का, वो उतना डिफ़िकल्टी से फ्लो हो पाएगा, उसके लिए ऑब्स्टिकल उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आयंस का साइज़ कम होगा तो इट कैन मूव इजीली। तो इसीलिए साइज आयंस का जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी उतनी कम होगी किसी भी सब्सटेंस की। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और आयंस के लिए मूव करना इजी होता जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आयंस इजीली मूव कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जनरली क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो आपको इन फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसे कि आपको पता है, कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और फुट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और क्योंकि कंडक्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, किसी भी सेल का अगर हमको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमको सिर्फ उसका मटेरियल, उसका मीडियम चाहिए होता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पता चल गई तो वही कंडक्टिविटी क्या होगी, उस सेल की भी होगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी सेल का। तो कंडक्टिविटी सेल बेसिकली एक ग्लास वेसल होता है जिसमें हम लोग फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये फिल्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और इसके दोनों एंड्स पे होते हैं 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसके दोनों एंड्स पे 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो अब हम इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस का। क्योंकि आपको पता है जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू R इंटू A/L। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टिविटी सेल का आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ इसकी ये हो जाएगी, तो लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कंडक्टिविटी सेल की। तो अब अगर आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो R आपको कैलकुलेट करना है। अगर R आपको मिल गया, तो आपको कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी दैट इज़ कैपा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इंटू L/A। तो ये कैपा की वैल्यू होती है। नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, द L फॉर अ गिवन सेल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी गिवन सेल का, भाई हमने एक बार सेल ले लिया तो उसकी लेंथ तो सेम रहेगी, उसकी लेंथ तो हम उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूसरा सेल लेते हैं तो दूसरे सेल की हम लोग लेंथ अलग रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार एक सेल ले लिया तो किसी भी सेल के लिए लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी और उसके साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो रेशियो होता है दैट इज़ L/A, दिस रेशियो इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ G स्टार से। तो G स्टार इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना L/A किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी सेल की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती है, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है। अब सिर्फ हमारे पास एक प्रॉब्लम रह जाती है, दैट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो हम लोग R की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 3 नोन रेजिस्टेंसेज होते हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का फिगर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। हम लोग यूज़ करते हैं एक बैटरी, देन मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक P, दूसरा रेजिस्टेंस ये Q। यहाँ पे हम लोग कंडक्टिविटी सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंडक्टिविटी सेल को
मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया कंडक्टिविटी सेल का। और एट लास्ट वी हैव अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है S, तो और बीच में होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग इन 4 रेजिस्टेंसेस को, P और Q की वैल्यू तो फिक्स होती है, S की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और हमको S की वैल्यू इस तरीके से सेट करनी है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास ना हो। और अगर जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कंडीशन क्या होती है फिर, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो आप यहाँ से R इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि P आपके लिए नॉन रेजिस्टेंस होता है, Q आपके लिए नॉन रेजिस्टेंस होता है, और S आप अपने अकॉर्डिंग वेरी करते जाते हो, तो S की वैल्यू भी आपको पता होती है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, P/Q इंटू S। तो आप इस R को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक बार आपको R की वैल्यू पता चल गई तो आपको कैपा की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी। तो कैपा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपा इक्वल टू दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। L/A को हम लोग G स्टार से डिनोट कर सकते हैं। तो कैपा इज इक्वल टू G स्टार बाय R। दिस इज सेल कांस्टेंट एंड सेल कांस्टेंट इज L/A। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा और lambda m. So what is molar conductivity? Molar conductivity is the conductivity of a cell or an electrolytic solution having molar concentration, 1 molar concentration. So you can say the molar conductivity, that is lambda m, is equal to conductivity divided by concentration, and that too molar concentration. So it is denoted by conductivity, that is denoted by kappa, divided by molar concentration is denoted by C. So lambda m is equal to kappa by C. So you can see the value of molar conductivity depends on the concentration of the substance. Higher the concentration, lower is the value of molar conductivity. So hope you have understood the topic. So we can calculate the unit of molar conductivity. The unit of molar conductivity will be the unit of conductivity, that is Simon per meter divided by mole per liter. But you know that liter means decimeter cube, and here the unit is given per meter. But generally in questions the unit of conductivity is given in the form of Simon per centimeter divided by, now since it is in liter, now what will we do, we will also convert the liter into centimeter cube. So you know that 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. So per liter it will be divided by 1000, so it will be mole upon 1000 centimeter cube. Now this centimeter cube will move to the numerator, so it will become Simon centimeter square per mole. So we have to remember this unit. This unit is generally used to calculate the value of lambda m, and since it is given in centimeter square, it will multiply with the factor of 1000. So generally formula that we use is not lambda m is equal to kappa by C, it is lambda m is equal to 1000 kappa by C concentration. So this is the formula that we are going to use to solve the numerical problems. Our next topic is limiting molar conductivity. So what is the limiting molar conductivity? The molar conductivity of an electrolytic solution on infinite dilution. So as you can see कि अगर आप lambda m की वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चेंज करना पड़ेगा. नाउ द वैल्यू ऑफ lambda m is equal to kappa by C.
तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओगे, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो, उसका कंसंट्रेशन आप डिक्रीज़ करते जाओगे, तो डिक्रीज़ करने पे उसके कंसंट्रेशन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और अगर C की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी तो लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आप डाइल्यूट उस सॉल्यूशन को करते जाओगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिसोसिएशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे सॉल्यूशन को, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट उसमें डिसोसिएट होता जाएगा, और जिस पॉइंट पे ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो लैम्डा m की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट m से या फिर जस्ट लैम्डा नॉट से। तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू होती है वो भी सेम रहेगी, कैपा बाय C कंसंट्रेशन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में, तो जो लैम्डा नॉट m की वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो आपको यहाँ पे साफ पता है, क्लियर पता है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाओगे लैम्डा m की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जब कंसंट्रेशन क्लोज टू 0 होगा तो वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी, और जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाओगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो लैम्डा m की वैल्यू है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C। तो ये रिलेशनशिप हो गई लैम्डा m और C के बीच में। तो होप कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।